Hello students, in the last video we saw the effects of the First World War, okay, and about the Treaty of Versailles. Today we will start the Russian Revolution, that is also known as Bolshevik Revolution. Okay, so as you know that during the time of First World War, Russian Revolution had been started in 1917 in Russia. Because of this, Russia withdrew from the First World War. Okay, so what are the reasons why the Russian Revolution had started in Russia? Let's see about it. The Russian Revolution in 1917 is considered as an important event in the world history. The Russian had been oppressed and suppressed by the Caesar of रशिया. ओके, जो सीजार्स थे रशिया के, वो रशिया को चलाते थे. ओके, रशियंस हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय द सीजार्स ऑफ रशिया. The Russian Caesars who inherited the position were all the dictators and enjoyed uncontrolled rule over people. People did not have any rights during this period. The Caesars were so cruel and pitiless on the people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed and severely punished or condemned to be sent to the bone-chilling and dead cold of Siberia. Listen, जो सीजार्स थे रशियन सीजार्स, वो इतना सारा बेनिफिट उनको मिलता था, उनकी पोजीशन ऐसी थी कि वो मतलब एंजॉय करते थे और पीपल के ऊपर उनका फुल कंट्रोल था. पर ये कंट्रोल नेसेसरी कंट्रोल नहीं था. ओके, they have the uncontrolled rule over people, they enjoyed it. Okay, and because of them जो कंडीशन थी पीपल की वो बहुत ही वर्स थी. ओके, इन दिस टाइम पीपल हैव नो राइट. ओके, पीपल को किसी भी टाइप का राइट नहीं था. दे हैड नो राइट ड्यूरिंग दिस पीपल. ओके, इवन दैट इफ दे wanted to do something, if they wanted to raise their voice against this, if they wanted something rights, okay, if they demanded for any rights, तो वो लोग क्या करते थे? दे टॉर्चर्ड देम. वो उनको टॉर्चर करते थे, उनके साथ इतनी ख़राब तरीके से पेश आते थे. उनको टॉर्चर करना, मारना, पीटना मीन्स जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स डिड विथ द इंडियंस. ओके, सो they were so cruel, they torture, suppressed and severely punished. वो पीपल को इतनी ज़्यादा पनिशमेंट देते थे, या तो फिर उनको साइबेरिया भेज दिया जाता था जहाँ पे बोन चिलिंग कोल्ड था. मीन्स व्हाट, तो हमारी जो हड्डियाँ है वो भी जम जाए, इतनी ठंडी के अंदर उनको वो वहाँ पे भेज देते थे एज अ पनिशमेंट. This uncontrolled and oppressive Caesardom became the reason for grief, poverty and suffering among people. ये जो अनकंट्रोल ऑपरेसिव सीजारडम था, ये रशिया के अंदर ग्रीफ, पॉवर्टी और सफ़रिंग का रीज़न बना, जिसकी वजह से पीपल की कंडीशन सोशली इकोनॉमिकली डाउन हो गई थी. दे बिकेम पुअर, इवन दे डिडंट गेट द इनफ फूड टू ईट इन अ डे. The Russian farmers, laborers and peasants were not getting enough income. उनको enough income भी नहीं थी according to their workload. Despite working very hard, okay, they became very poor. Under the leadership of Father Gapon, a large rally was taken out to the Caesar's residence. ठीक है, Father Gapon की leadership के अंदर, do the underline, students do the underline on this. Okay, underline किया आपने. Under the leadership of Father Gapon, a large rally was taken out to the Caesar's residence. Winter Palace, do the underline again and do the bracket from the starting. ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वहाँ से ब्रैकेट भी करना, बिकॉज इट इज़ द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन. द क्वेश्चन आई विल टेल यू लेटर. ओके, विंटर पैलेस 22nd January 1905 Sunday. Do the circle on this day. 22nd January 1905 Sunday. These people were unarmed, okay, while some had the Caesar's picture in hand with captions like "Long live the little white lord of Russia" written on it. ठीक है, तो लिसन, जो सीज़ार का रेसिडेंस था कहाँ पे? विंटर पैलेस. वहाँ पे 22nd जनवरी 1905 संडे के दिन फादर गैपोन के लीडरशिप के अंडर लोग निकले थे रैली लेके. ओके,
ये पीपल ने किसी भी टाइप का किसी को मतलब बताया नहीं था, ये ऐसे ही डायरेक्टली उन्होंने रैली निकाल ली थी। किसी किसी के हाथ में सीजर्स के पिक्चर थे, किसी के हाथ में कैप्शंस थे। द सीजर्स आर्मी ओपन द फायर ऑन दिस इनोसेंट पीपल। अभी ये जो लोग थे इनोसेंट थे, वो एक्चुअली सिर्फ रैली लेके आए थे। इनके ऊपर जो सीजर्स की जो आर्मी थी उन्होंने ओपन फायर कर दिया, जस्ट लाइक जनरल डायर डिड इन द जलियांवाला बाग, because of which thousands of innocent people died and the snow in Petersburg, where the Caesar's palace was situated, turned red with blood. पीटर्सबर्ग, ठीक है, पीटर्सबर्ग जहाँ पे ये विंटर पैलेस है, ठीक है, वहाँ पे ये लोग अपनी रैली लेके आए थे। वहाँ पे आर्मी ने, सीजर्स की आर्मी ने ओपन फायर किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। और जो पीटर्सबर्ग का जो स्नो है, मतलब वहाँ पे वो बर्फीला प्रदेश है, ओके, बर्फीली लैंड है, वहाँ पे बहुत सारा स्नो होता है। वो स्नो जो वाइट होता है वो ब्लड की वजह से रेड कलर में टर्न हो गया। दिस डे इज़ नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके, हमने जो स्टार्टिंग से ब्रैकेट किया था यहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा है। एंड द क्वेश्चन इज वाई डिड द 22 जनवरी 1905 संडे इज नोन एज द ब्लडी संडे इन हिस्ट्री, ठीक है, ये ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। एंड द पैराग्राफ टिल हियर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अराउंड दिस टाइम अ लार्जर नंबर ऑफ रशिया गॉट प्रोवोक्ड एंड become restless as the weakness of the Caesardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russian-Japan war, ठीक है। अभी अराउंड दिस टाइम जो रशियन था, रशियंस गॉट प्रोवोक्ड एंड बिकेम रेस्टलेस एज द वीकनेस ऑफ सीजरडम हैड बिकम ऑब्वियस व्हेन अ स्मॉल नेशन, मतलब ये जो सीजरडम की वीकनेस थी ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। और ये इतनी, मतलब लोग इससे इतने जानकार हो गए थे कि एक स्मॉल कंट्री जैसे कि जापान है, जापान ने भी इतने बड़े रशिया को वॉर में, मतलब रशियन जापान वॉर जो हुआ था 1904 टू 1905, उसमें जापान ने रशिया को हरा दिया। इन ऑर्डर टू पेसिफाई द एंग्री रशियंस एन अनाउंसमेंट टू कॉल फॉर अ ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली विच हैड नॉट बीन कॉल्ड फॉर ईयर्स। अभी ये जो रशियंस थे वो गुस्से में तो थे ही ऑब्वियसली, कि एक सीजरडम की वीकनेस की वजह से 1904 टू 1905 के अंदर जापानीज ने रशियंस को हरा दिया। रशियंस बहुत ही गुस्से में थे, तो उनका ये गुस्सा शांत करने के लिए ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाई गई, जो बहुत सालों से इकट्ठा नहीं की गई थी। असेंबली अभी तक नहीं बुलाई गई थी, वो बुलाई गई, और जो ड्यूमास थे वो बुलाए गए। अभी इसके पहले कि ड्यूमास कुछ एक्शन ले, सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे, सिटीजन को सेटिस्फाई करे, ड्यूमास को वापस बुला लिया गया, ओके। सो दे couldn't do anything for this one. Now again start the paragraph on 18 मार्च से वापस से पैराग्राफ स्टार्ट करो। On 8 मार्च 1917 the oppressed workers of पेट्रोग्रेड कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक, ठीक है। जो पेट्रोग्रेड के वर्कर्स थे, वो स्ट्राइक पे चले गए 8 मार्च 1917 पे। डू द अंडरलाइन, ये ब्लैंक में भी पूछेंगे। द सीजर्स सेंट हिज ट्रूप्स टू कंटेन दिस इवेंट। सीजर्स ने ये इवेंट को कंटेन करने के लिए अपनी ट्रूप भेजी, बट ट्रूप्स ने क्या किया, दे रिफ्यूज टू शूट ऑन दिस पीपल, ठीक है। पहले तो उन्होंने किया था शूट, लेकिन दिस टाइम दे रिफ्यूज टू शूट द पीपल, ओके। उसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट द रिवॉल्यूशन बिगेन। देखो, जो आर्मी थी वो, देन जो सिंपल सिटीजन्स थे रशिया के वो, और जो पेट्रोग्रेड के वर्कर्स थे वो सब साथ में मिल गए और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। आफ्टर द फॉल ऑफ सीजरडम द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ केरेंस्की। डू द अंडरलाइन, केरेंस्की लीड मोल्शेविक ग्रुप मीन्स माइनॉरिटी, ठीक है। अभी जैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ सीजरडम ख़त्म हो गया, मतलब सीजर्स हार गए, उनके लिए लड़ने के लिए कोई था ही नहीं। सो दे लॉस्ट द वॉर, वो हार गए। एंड आफ्टर द वॉर जो कंट्रोल था, जो पावर था रशिया का, वो केरेंस्की के हाथ में चला गया। अब नाउ हु इज़ केरेंस्की, देन केरेंस्की वॉज द लीडर ऑफ द मोल्शेविक ग्रुप, ठीक है। केरेंस्की कौन था, तो मोल्शेविक ग्रुप का लीडर था। मोल्शेविक ग्रुप मीन्स माइनॉरिटी, ठीक है। जैसे हमारे
इंडिया में जो माइनॉरिटी पीपल है वैसे वहाँ पे जो माइनॉरिटी पीपल थे रशिया में उनके वो लीडर थे। एक्सेप्ट फॉर लेनिन एवरीवन इन रशिया वॉज हैप्पी विद द फॉल ऑफ सीज़र, बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबरर्स as propagated by Karl Marx, while the Bolshevik group believed in the importance of the middle class. Listen, अभी ये जो लेनिन है उसके अलावा सीज़र के हार जाने पर सभी लोग खुश थे। ऐसा नहीं था कि सीज़र के हार जाने पर लेनिन खुश नहीं था, लेनिन खुश था, लेकिन उसका रीज़न मतलब नाखुश होने का रीज़न कुछ अलग था। उसके मुताबिक वो कार्ल मार्क्स को फॉलो करता था। अकॉर्डिंग टू हिम ही बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबरर्स ग्रुप। ठीक है, जो लेनिन था वो लेबरर्स को इम्पोर्टेंस देता था, फिर लेबरर्स में सभी लोग आ गए, जबकि जो केरेंस्की था वो मिडिल क्लास को इम्पोर्टेंस देता था। मोल्शेविक ग्रुप जो था वो मिडिल क्लास को इम्पोर्टेंस देता था। एज अ रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक्स अगेंस्ट मोल्शेविक्स एंड इन नवंबर 1917 डिक्लेयर द फाइनल रिवॉल्यूशन एंड गॉट द रेंस इन हिज हैंड। अभी जो लेनिन था उसने बोल्शेविक स्टार्ट किया। बोल्शेविक्स मतलब लेबरर्स का ग्रुप एंड मोल्शेविक मतलब माइनॉरिटीज़ का ग्रुप। बोल्शेविक के लीडर थे लेनिन एंड मोल्शेविक के लीडर थे केरेंस्की। दोनों के बीच में एक फाइनल रिवॉल्यूशन हुआ और ये फाइनल रिवॉल्यूशन के बाद जो पावर था वो बोल्शेविक्स के हाथ में चला गया। That's why this revolution was also known as the socialist Bolshevik revolution in the history। ठीक है, इसलिए ये रशियन जो रिवॉल्यूशन है उसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। Thus the 300 years old Caesardom came to an end and for the first time Russia was without Caesar। Now the effects for the world peace। ठीक है, efforts for the world peace। अभी वर्ल्ड पीस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रिवॉल्यूशन के बाद पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए बहुत ही इफ़र्ट्स लगाए गए। ठीक है, अभी वो क्या है वो देखते हैं। द लीग ऑफ नेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द लीग ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन्ड द एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर द वर्ल्ड पीस टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट। कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी कि जो पूरे वर्ल्ड में पीस कंट्रोल कर सके, ऐसी फीलिंग पूरे वर्ल्ड में आ चुकी थी। सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, टू द अंडरलाइन अगेन, द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन हैड कंट्रीब्यूटेड substantially in the establishment of the League of Nations. The 14 points suggested by the Woodrow Wilson were presented during the Paris Peace Process on the 10th January 1920। ठीक है, पेरिस पीस प्रोसेस में उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे। ओके, कब 10 जनवरी 1920 को द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ। अभी लीग ऑफ नेशन के एम्स क्या है, लेट्स सी अबाउट द एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। डू द टिक मार्क, इट विल आस्क इन 2 marks। राइट डाउन द एम्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ओके, सो फर्स्ट इज टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अदर नेशन। दूसरा एम ये था कि हर एक नेशन दूसरे नेशन के लिए दूसरे नेशन के यूनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में रिस्पेक्ट रखे। टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, जो वॉर की पॉलिसी है वो अपने दिमाग से हर एक नेशन निकाल दे। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन, जो एक कंट्री है वो दूसरे सारे कंट्रीज़ के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन बनाए वो अच्छी तरीके से बना। टू डेवलप द गुड रिलेशनशिप बिटवीन द अदर कंट्रीज़। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशंस और मीडिएशंस। ओके, मीडिएशन मतलब मध्य में रह के दो कंट्रीज़ के बीच के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाना। ओके, तो जो उनका काम था लीग ऑफ नेशन का वो दूसरा क्या था, टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, क्वेश्चंस है, उसको पीसफुली सॉर्ट आउट करना, नेगोशिएशन करके या तो फिर मीडिएशन से। नेगोशिएशन मतलब
सेटिस्फैक्ट्री आंसर दोनों को मिले, ठीक है, दोनों के जितने भी क्वेश्चंस है उसका ऐसा कुछ आंसर निकाला जाए, प्रॉब्लम का ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए कि दोनों को सेटिस्फेक्शन मिले। इफ़ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशन और इट्स मीडिएशंस इट वुड बी डिक्लेयर एज अ रिबेल नेशन। दूसरा एम ये था कि जो कोई भी नेशन लीग ऑफ नेशन के मीडिएशन को या लीग ऑफ नेशन को इग्नोर करता है तो उसको रिबेल नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। द लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस, ठीक है, वर्ल्ड पीस के लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया था। डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द सुपर पावर्स। बट ये जो लीग ऑफ नेशन है वो जो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ है सुपर पावर्स की, फॉर एग्जांपल अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इनके ये जो सुपर पावर्स हैं इनके जो पॉलिसीज़ है अब और सुपर पावर बनने की, इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी है, इसके ऊपर ये कंट्रोल नहीं कर पाया। दैट्स वाई 1939 द सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगेन। 1939 तक ये नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर लेसन नंबर 2 was completed. Go through the videos of these lesson and listen the each and every word carefully. Do the underline, do the circle, whatever and wherever I told you to do it. Okay, so you can read it properly, write whole the answers point wise. The important question of this is Russian Revolution, Treaty of Versailles, effects of First World War, League of Nations aim, okay, factors of World War, okay, these are the main questions. So write it properly, point wise अगर लिखोगे तो आपको ये ज़रूर याद रहेगा। So read it properly and learn it. Here our chapter is completed. So goodbye everyone.